Yes, good morning, student. Today, welcome to all in physics class. Today, I will start the chapter number 4. The chapter is motion in a plane. Before it, we have studied the motion in a straight line. In straight line motion, when object moves along the straight path. So, we have studied in that topic displacement, distance, speed, velocity, acceleration, and kinematic relations of the motion. All these topics are related to the motion in straight line. Now it is the turn of motion in a plane. So I would like to come to the topic, that is the first topic of this chapter is scalars and vectors. Scalars and vectors, these are the physical quantities. Means those physical quantities which have only the magnitude. For example, time. There is no direction in the time. It has only the magnitude 1 hour, 2 hour, 30 minutes, 40 minutes, 30 seconds, 40 seconds, etc. Clear? Same thing, mass 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1 kg, 2 kg. It has only the magnitude, there is no directions. So these all are the physical quantities are known as scalars. Scalars are those physical quantity which have only the magnitude, not a direction. For example, length, mass, time, current, etc. I have given all these definition in the PDF, so you can note it from the PDF side. आप PDF से उसको नोट कर लेंगे, मैंने PDF में दिया हुआ है. I will discuss the topic in the board. Next one, that is a vector physical quantity. Vectors are those physical quantity which have magnitude and direction both. मतलब magnitude के साथ साथ उसमें direction भी दिया होता है. For example, force. Suppose this is object, ये कोई object है, and force is applying in a particular direction, that is force. So this is known as the vector physical quantity. For example, displacement, velocity, acceleration, force. So those physical quantities which have magnitude as well as direction, these are known as the vector physical quantities. The definition of vector physical quantity I have given in the PDF notes. Is it clear? I think you have studied in 9th also. Clear? Next, I want to come to the next topic. Position vector. पोजीशन वेक्टर, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए. पोजीशन वेक्टर कैसे? इन एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. Suppose any object between x y plane, that is suppose at a point P. So such point P lie in x axis, also lie in the y axis. कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y. And the position of that point P from the origin, that is R. Position, this is known as position vector. So that OP, O से P का डिस्टेंस, ये वेक्टर का साइन है एरो, इक्वल टू R, ये पोजीशन वेक्टर होता है. दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन तो क्या हो गया? O से P तक का डिस्टेंस, लेकिन डायरेक्शन भी O से P की तरफ होगा, जो एरो से रिप्रेजेंट हो रखा है, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. इज इट क्लियर? तो इसका PDF आप देख लेंगे. अगला टॉपिक इसी का सिमिलर. सपोज इनिशियली पॉइंट एट P1, यहां था. After few time it will change its position. Suppose
पॉइंट आपका P2 यहाँ ले लिया मैंने, और इस P2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दूसरा ले लेता हूँ R2। पहला P1 था, इसका पोजीशन वेक्टर R1, दूसरे का पोजीशन वेक्टर R2। ये वेक्टर लगाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 x2 y2, ठीक है। पहले वाले के क्या थे, x1 y, ठीक। तो दोनों की पोजीशन लेते हैं, इसको ये कहेंगे x2, ये क्या था x1, इसको इधर मैंने रहा ये y2 और ये y1। तो ऑब्जेक्ट x एक्सिस पर पहले x1 पर था, आफ्टर फ्यू टाइम x2 पर आ गया। सेम एट द y एक्सिस, इनिशियली y1 पर था, कुछ टाइम बाद y2 पर आ गया। तो दोनों में अलोंग x एक्सिस या अलोंग y एक्सिस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। तो P1 से P2 तक का ये डिस्टेंस, दैट इज P1 P2, P1 P2, इसे डेल्टा R से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा फॉर द इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स और R फॉर द डिस्टेंस, क्लियर। तो डेल्टा R P2 P1 P2 इक्वल टू डेल्टा R, और क्या लिखेंगे इसको, देखिए हमेशा इंटरवल या डिफरेंस निकालते हैं, जो फाइनल आता है मेजरमेंट उसमें से इनिशियल माइनस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट इनिशियल कहां था P1 पर, फाइनल कहां पहुंच गया P2 पर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, P2 का पोजीशन वेक्टर माइनस P1 का पोजीशन वेक्टर, दैट इज R2 फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस R1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो इससे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने दो चीज डिस्कस की, पहले अभी किया था स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, मींस जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आल्सो, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स, तो 10 न्यूटन फोर्स तो है बट इन विच डायरेक्शन, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। आफ्टर दैट मैंने कहा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, सपोज यू आर सिटिंग इन द क्लास, क्लास में बैठे हुए हैं, तो अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस आपकी पोजीशन कहां है, फिर ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर है दैट इज द पोजीशन वेक्टर। आफ्टर दैट सपोज यू आर चेंजिंग योर पोजीशन, तो मैंने ये समझते, इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास में छोटे छोटे दो कंटेंट्स हुए जिन्हें हम पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है। अब मैं बात करता हूं फिर से थोड़ी सी वेक्टर क्वांटिटी पर, हल्का सा, कि वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज हैं क्या। देखिए वेक्टर, सपोज 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर 10 न्यूटन फोर्स, फोर्स F, ये वेक्टर F, ठीक, या वेलोसिटी v अलोंग x एक्सिस, या एक्सीलरेशन a अलोंग x एक्सिस, कोई भी देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। अब वेक्टर्स को पढ़ते हैं। ये तो कहा चलिए एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ऐसा ही दूसरा एक फोर्स और लगा हुआ है इस पर, तो इसको कहा मैंने F1, दूसरे को कहा F2। अब क्या हुआ, दो फोर्स अप्लाई हो गए, तो नेट फोर्स कितना होगा, F1 इक्वल टू 5 न्यूटन, F2 इक्वल टू ऑल्सो 5 न्यूटन। क्या करेंगे, कितना हुआ, 10 न्यूटन। दोनों को ऐड किया, तो ये आ गया more than one vector, how we will add them, addition of the vector। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार वेक्टर्स के सब डेफिनेशंस हैं कुछ रिलेटेड टू वेक्टर। तो क्या क्या डेफिनेशंस हैं, देखिए some definitions। of vectors, सबका पीडीएफ आपके पास है, डेफिनेशन बड़ा सिंपल तरीके में लिखा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं छोटा छोटा सा उसको ब्रीफ कर देता हूं। पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर,
इक्वल वेक्टर कहते हैं कि जब दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में है। सपोज अभी जो मैंने बात की ये 5 न्यूटन, इट इज ऑल्सो 5 न्यूटन, ये भी क्या है, फोर्स है, ये भी क्या है, फोर्स है, इन्हें कहेंगे इक्वल वेक्टर। या मैंने फर्स्ट का नाम ले लिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मींस ये पर्टिकुलर एक पर्सन है जो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये पर्सन बी है जो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड 5, ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, दिस इज नोन एज इक्वल वेक्टर। क्लियर? दूसरा आता है इसके बाद में नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव ऑब्लिक अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर मींस फर्स्ट पर्सन अप्लाइंग फोर्स ऑन डायरेक्शन, कितना, 5 न्यूटन, सेकंड इज अप्लाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बी कितना लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन लगा रहा है लेकिन माइनस का, अपोजिट मैंने एरो लगा दिया, इसे कहते हैं अपोजिट वेक्टर। अब क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 - 5 कितना आ गया, 0, नेट वेक्टर कितना हो गया, 0, बट जरूरी है हर बार 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो ये आगे क्या, नेगेटिव वेक्टर। फिर आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, तीसरा पॉइंट, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। देखिए क्या करते हैं, ये लिखा है मेरे पास में वेक्टर ए, जो भी मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा सपोज ये कोई वेक्टर है ए, कितना है, 5 न्यूटन, तो ये 5 तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड और ये एरो आ गया इसका डायरेक्शन, एरो आ गया डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे इसको, ये मैग्नीट्यूड या मोड का साइन होता है और ये लिखा ए और इस पर एरो। अब इस मोड लगाने का मतलब है कि केवल ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर इक्वल टू ए, ठीक है। उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट मींस होता है 1, मींस वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे मैंने कहा ये वेक्टर ए, इसके ऊपर ये कैप लगा दिया, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, ठीक है। तो जिसमें यूनिट, अब मैं ये नहीं लिख सकता कि a इक्वल टू 5 न्यूटन, ये नहीं लिख सकता। अब ये कितना होगा, केवल 1 न्यूटन हो सकता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, 1 मीटर पर सेकंड हो सकता है, लेकिन यूनिट रहेगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, तो यूनिट वेक्टर वहां यूज किया जाता है जहां केवल डायरेक्शन आपको सिंबलाइज करनी हो, डायरेक्शन केवल रिप्रेजेंट करनी हो, जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं पड़े। बट 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से डिवाइड करें तो किसी भी नंबर पर कोई भी चेंज नहीं होता। तो कैसे लिखेंगे, सपोज वेक्टर ए लिखा हुआ है, ये इक्वल टू mod of A इंटू यूनिट वेक्टर। मतलब समझे इसका क्या हुआ, ये एरो का मतलब तो आ गया यूनिट वेक्टर और ये ए लिखा है, इसका मतलब ये आ गया। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को मिलाकर ये एरो लगाते हैं, या इसको अलग अलग लिख दिया। इज इट क्लियर? तो ये यूनिट वेक्टर, तो ए यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे, ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाय ए, ये लीजिए, सॉरी डिवाइड बाय वेक्टर है, सॉरी उल्टा लिखा, ए वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ, सीधा डिवाइड कर दिया इधर से। तो ये आ गया आपके पास में यूनिट वेक्टर। अगला है, छोटे छोटे टाइप्स हैं, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर means those vectors which are in a same line। जैसे फर्स्ट वेक्टर ये,
सेकंड वेक्टर ये, थर्ड वेक्टर ये, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड का टेल, सेकंड का हेड थर्ड का टेल, दीज आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। तो एक से ज्यादा, जैसे अगर किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा पर्सन एक साथ फोर्स लगा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दे आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। फिर अगला है, इसी का पार्ट है, छोटी छोटी डेफिनेशन से है। अगला पार्ट है आपका कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर कैसे? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब हो गया कि एक प्लेन में है, तो प्लेन तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है। कैसे? सपोज फर्स्ट वेक्टर ये ले लिया मैंने, वेक्टर ए कह दिया, सेकंड वेक्टर ये कह दिया, तो ये दूसरी एक्सिस में चला गया, बट एक्स और वाई प्लेन में रहेगा। यहां मैंने ये ले लिया सपोज, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर? एक और आता है इसके बाद में नल वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी कहते हैं इसको। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो फिर जीरो वेक्टर की जरूरत क्या पड़ेगी जब मैग्नीट्यूड जीरो है? पड़ेगी। सपोज मैंने कहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये भी समझा रहा हूं चीज। नल वेक्टर में समझा रहा हूं, जीरो वेक्टर में, कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी लिखा मैंने, देख सकते हैं दो वेक्टर बराबर, मैथमेटिकली इसको कर लिया, ए माइनस बी आएगा क्या? इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस बी दोनों का डिफरेंस जीरो आ गया, ये जीरो वेक्टर इसीलिए कंपलसरी होता है। सपोज वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल टू जीरो, इसके लिए तो ये प्लस माइनस कोई भी पॉसिबल हो सकता है। ये माइनस का है तो प्लस आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस है। ये इसे कहते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर्स, ठीक है। चलिए अब आता है आगे ऑर्थोगोनल यूनिट्स ऑफ वेक्टर। देखो कैसे ऑर्थोगोनल यूनिट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट ऑफ वेक्टर्स, देखिए कैसे, इसे बात करता हूं मैं, थ्री डायमेंशनल कर लेता हूं, आगे काम आएगा, हालांकि अभी 3D स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, थ्री डायमेंशनली सभी चलते हैं। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको आई कैप, कैप मींस यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस के अलोंग है, जे यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड एक्सिस है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सपोज वेक्टर ए ये ले लेता हूं, चलिए ये मैंने कहा वेक्टर ए, तो इस वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे यहां? एक्स एंड वाई, सॉरी ये पोजीशन ले लिया, इसको तो कह दिया ए और वाई वेक्टर और इसे कह दिया ए और एक्स, ठीक है। तो ax और ay, ax आ गया along x एक्सिस, ay आ गया along y एक्सिस, तो ax को क्या लिखेंगे? वेक्टर ax इक्वल टू ax और i यूनिट वेक्टर। मींस ये जो एरो लगा था, एरो को तो i से रिप्रेजेंट कर दिया और x ये इंडिकेट कर रहा है कि ये x एक्सिस पर है, तो मैंने कहा कि x एक्सिस का वेक्टर along x होता है। ऐसे ही अगर इसको बात करता हूं ay, तो ay इक्वल टू ay इनटू j ले लिया, क्योंकि y एक्सिस को j से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सिमिलरली az आ गया, वेक्टर az इक्वल टू az इनटू k यूनिट।
इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये वेक्टर का पूरा शेड्यूल छोटा छोटा डेफिनेशन में पूरा पीडीएफ में आपको दिया हुआ है। अब मैं छोटी सी और एक बात कर लेता हूँ फिर कैसा है, फिर आप अपने आप आराम से करते रहेंगे। आगे का मैं शेड्यूल फिर आपको अभी अभी दूंगा। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कोलिनियर वेक्टर या कोप्लेनर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर में क्या है कि अगर एक से ज्यादा वेक्टर एक ही लाइन में तो उन्हें ऐड करेंगे, या अपोजिट में तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे? सपोज वेक्टर ए, इसको ये हेडिंग दे देता हूं मैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या, मैंने कहा फर्स्ट वेक्टर कोई ए है, सेकंड वेक्टर सीधा इसी के सामने ये लगा दिया वेक्टर बी। तो टोटल वेक्टर क्या बन गया? पूरा कंप्लीट ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, यानी टोटल का सम कर दिया। तो सम कैसे करेंगे? फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल, जब दोनों को ये कंबाइन कर देंगे इसे कहेंगे एडिशन वेक्टर। लेकिन यही नहीं हो जाता कि लीनियर में ही है, ये प्लेनर में भी होता है। तो प्लेनर में इसको कैसे करेंगे? प्लेनर में मैंने ये कह दिया, तो ये वेक्टर बी आ गया, दोबारा से ये वेक्टर बी आ गया, और बी वेक्टर का अब इसका रिजल्टेंट कैसे लेंगे? ये रिजल्टेंट देखो ये आ गया, आर इक्वल टू ए प्लस बी। ये वेक्टर आर, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये दोनों का एडिशन इधर ले लिया। ठीक है, क्या हुआ इसमें? ये a प्लस बी लिखा है, ये स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ये 3 है और ये सपोज 4 है, तो 3 प्लस 4 ये 7 नहीं होगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सम है, 3 प्लस 4 7 नहीं है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते इस एडिशन को, ये सिंबलाइज है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने ए और बी दोनों वेक्टर का सम निकाला है। लेकिन ऐड नहीं डायरेक्ट करना है, ऐड के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बाद में, ये फॉर्मूला बाद में ड्राइव करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के बाद में मैं बात करता हूं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? सपोज एक वेक्टर ये ले लिया ए, और दूसरा वेक्टर ये ले लिया मैंने बी, और ये माइनस अपोजिट डायरेक्शन ले लिया। अपोजिट डायरेक्शन ले लिया तो नेट वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये वेक्टर साइन है बेटा सभी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसी को प्लेन में कैसे लिखेंगे? प्लेन में लिखेंगे इसी को, मैंने कहा वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस बी कह दिया इसको, ये वेक्टर ए कह दिया इसको। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या किया? ये कह दिया रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये भी a माइनस बी का मतलब डायरेक्ट नहीं है कि आपने 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 कर दिया, ये नहीं है। ये भी मेथड से फाइंड करेंगे, तो उसका मेथड मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर करेंगे। क्लियर? तो मैं इससे आगे का आपको टर्म अभी एक बार बाद में दूंगा, पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए और इसके कुछ असाइनमेंट्स और मैं आपको साथ में